ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام تحية والإكرام جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ليوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بزرگان ملت مولا کے اقتدار، آج ماہ محرم کی 5ویں تاریخ ہے. جس آیت کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نمبر 48 جس کو کہتے ہیں سورہ فتح، آیت نمبر 8، 48 نمبر سورہ فتح آیت نمبر 8. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا. شاہد کے مطلب گواہی دینے والا، مبشر بنایا بشارت دینے والا، نذیر بنایا، طٰہٰ بنایا، یاسین بنایا. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فوراً ہی نویں آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے اوصاف بیان کیے ہیں اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے فضائل بیان کیے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ کہا میرے حبیب ان سے کہو کہ ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو جو ایمان لے کے آئے گا وہ مسلمان بنتا چلا جائے گا، اور جس نے ایمان نہیں لایا وہ مسلمان نہیں ہے. حبیب ان سے کہتے جاؤ اور اپنے عہدے کا اعلان نہیں کرنا، تب تک نہیں کرنا جب تک انہیں دعوت ایمان نہ دینا. یعنی پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ پہلے انہیں نبی کے اوصاف بیان کیے ہیں اور دوسری آیت میں کہا انہیں دعوت ایمان دینا. کہا جب بھی انہیں فضائل سنانا تو پہلے انہیں دعوت ایمان دینا. جب دعوت ایمان دیں گے تو آپ سے رغبت بڑھے گی، یوں کہوں کہ محبت بڑھے گی. ظاہر سی بات ہے اگر ہم آپ کو 3 دن تک بلائیں آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا، آپ سبھی لوگ کھانا کھائیے گا. کھانا کھا کر آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے. آپ مجھے دعا بھی دیں گے اور میں کہوں کہ آپ پھر کل آئیے گا ہماری مجلس میں اور کھانا کھا کر جائیے گا، کہیں کتنا اچھا انسان ہے کہ ہمیں روز بلا رہا کھانے کے لیے. تو آپ لوگ ایمان رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ پھر اور محبت بڑھے گی. میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ جتنے لوگ اور آپ کے ساتھی انہیں بھی لے کے آئیے گا ساتھ میں، تو کہیں گے ٹھیک ہے مولانا، وہ بھی آئیں گے، انہیں کھلا کے بھیج دیا گیا. جب اگلے دن پھر میں نے بلایا کہ آپ پھر آئیے گا اگلے دن، جتنے لوگ ہیں محلے میں سب کو لائیے گا، وہ بھی خوش ہوں گے کہ کتنے اچھے مولانا ہے، کتنے اچھا انسان ہے کہ ہمیں دعوت پہ بلایا جا رہا ہے، ہمیں کھلایا جا رہا. اللہ یہی تو بتلانا چاہ رہا میرے حبیب پہلے عہدے کا اعلان نہ کرنا، پہلے دعوت ایمان دینا پھر عہدے کا اعلان ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد والے عہدے کا مطلب کیا؟ کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھیے جیسے کوئی مسلمان نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. اب پورا مجمع جمع ہوا، اس کو بلایا گیا اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، تو بھرے مجمع میں صلوات پڑھے بر محمد. وہ بھرے مجمع میں اگر مسلمان نہیں ہے اس سے کہا جائے، اگر وہ خود کہے اقرار کرے کہ ہم مسلمان بنیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے نبی کا، کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیے، ادھر میری طرف متوجہ ہو جائے. صلوات پڑھے بر محمد. آپ لوگ بیٹھ جائیے، آنے والے آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. جتنی
देर गुफ्तगू करना है आप ही के सामने करना, आप हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे, तभी बात मुकम्मल होगी। आपको लुत्फ उठाना है तो हमारा साथ दीजिए ताकि आपको भी मज़ा मिले और हमें भी, आपको खुशी मिले और हमें भी मिले। अज़ीज़ाने गिरामी, भरे मजमे में अगर एक इंसान कहे कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ तो उसे कलमा पढ़ाया जाएगा, लोग खुश होंगे कि एक मुसलमान हो गया है। नबी का तरीका यही था कि इन्हें दावत ईमान देते जाओ, नबी से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अगर आज के दिन एक इंसान आया है तो कल 10 आएंगे, परसों 100 आएंगे, नरसों 1000 आएंगे, और रोज़ की तादाद अगर बढ़ती जाएगी, जितनी तादाद बढ़ेगी उतनी मोहब्बत आपसे होगी। आप एक महीना तक अगर खाना खिलाते रहे कि जितने यहाँ पर मितौली में जितने लोग हैं सबकी दावत कर दीजिए, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। ये कितना अच्छा बंदा है, ये कितना अच्छा इंसान है कि लोगों को बुला बुला के खाना खिला रहा है। नबी तो यही काम कर रहे हैं, बुला बुला के खाना खिला रहे हैं। नबी के दिल में लोगों की मोहब्बत बढ़ रही है। कहा नबी कितने अच्छे हैं, कहा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के मोहब्बत है, अल्लाह के महबूब हैं, महबूब बंदे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता है। बात तो वाज़ेह हो गई ना, इसीलिए तो नबी बुला रहे हैं कि इन्हें खाना खिलाते रहो। का पैगाम अल्लाह की तरफ से, मेरे हबीब इन्हें बुलाओ और इन्हें खाना खिलाओ ताकि आपसे मोहब्बत बढ़ेगी। जितनी मोहब्बत बढ़ेगी तो आपकी बात सुनेंगे। जब इन्हें खाना खिलाया जाएगा फिर ओहदे का ऐलान किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे कितना अच्छा इंसान है कि रोज़ हमें खाना खिला रहा है, मोहब्बत बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी। मैंने कहा आप 100 लोग को लाइएगा, अगले दिन आप आए, हमने कहा 1000 लोग को लाइएगा, आप 1000 लोग आ गए। अगले दिन 2000 को लाइएगा, तादाद बढ़ी नहीं बढ़ी, 100 से 1000 हुए, 1000 से 2000, 2000 से 3000। तो इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपनी नबूवत का ऐलान न करना जब तक तादाद न बढ़ जाए, जब तक आपसे मोहब्बत करने वाले न हो जाए। ऐलान किया, करने के बाद जनाब अबू तालिब को भेजा कि जाओ दावत ज़ुलअशीरा में, और वहीं करना था नबी को ऐलान। गए और आने के बाद नबी ने इंतज़ाम किया खाने का। अब बिस्मिल्लाह की बरकत से खाना बहुत ज़्यादा हो जाता था। लोग आते थे, खाना खाते थे, खा के चले जाते थे। नबी जैसे खड़े होते थे तो नबी की बात नहीं सुनते थे। एक दिन वहाँ चले गए खा के। कहा जब दूसरा दिन आया फिर बुलाया गया इनको, गए और जाने के बाद खाना खाया, वापस जाने लगे और यही कहते जा रहे थे कि नबी जादूगर है। नबी के जादूगर नहीं, बिस्मिल्लाह की वजह से इतनी बरकत हो जाती है। ये बिस्मिल्लाह की वजह से इतनी बरकत हो जाती है। जैसे ही बिस्मिल्लाह किया, जो हमने कल तस्बीह बताई थी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमान या रहीम बिहक़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी की बरकत से इतना खाना ज़्यादा हो जाता था कि खाना बच जाता था, खाने वाले सहराब हो जाते थे। वो चले गए। तीसरी दिन जनाब अबू तालिब को भेजा। जब तीसरे दिन गए, बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें खाना खिलाया गया। मेहमान हैं नबी के, का इन्हें दावत ईमान देते रहो। 3 दिन तक मुसलसल इन्हें खिलाते रहे। नबी की बात 2 दिन नहीं सुनी। तीसरे दिन जब जाने लगे और जाने के बाद जनाब अबू तालिब ने रोका कि अब ठहर जाओ, अब ठहर जाओ। मैं मोहम्मद को खड़ा किया, खड़े हुए, कहा ओहदे का ऐलान करिए। मजमा भरा हुआ है, ओहदे का ऐलान हुआ। कहा कौन है जो नबी की मदद करना चाहता है। मैं इतने लोग बैठे हुए भरे मजमे में मैं कह रहा हूँ कि हमारी कौन मदद करेगा। अगर कोई मारने लगे मुझे तो आप बचाएंगे, आप बचाएंगे, आप बचाएंगे, आप बचाएंगे, आप मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नबी यही कह रहे हैं कि जो हमारी मदद करेगा वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा खलीफा होगा। अपनी ज़िंदगी में नबी कह रहे हैं, पूरा भरा हुआ मजमा है, ये एक आदमी नहीं है। पहले दावत ईमान दी है, फिर उसके बाद ऐलान किया। कहा कौन है जो मेरी इमदाद करेगा, यानी मेरी मदद करेगा। मदद के मतलब नबी के साथ रहना। उसको जब भी नबी पे मुसीबत पड़े आप उसकी इमदाद को पहुँचिए, उनकी मदद को पहुँचिए। जैसे हम पर मुसीबत आएगी आप फ़ौरन दौड़ कर आएंगे कि मौलाना को बचाया जाए, तो इसी तरह नबी ने कहा कौन है जो मेरी मदद करे। तो अली के सिवा कोई खड़ा ही नहीं होता था। अली खड़े होते थे, नबी कहते थे आप बैठ जाइए। 11 बरस का सिन है, नबी के इमदाद के लिए अली खड़े हुए। फिर कहा कौन है जो मेरी मदद करेगा, मेरा वो जानशीन होगा, मददगार, वो मेरा खलीफा होगा। नबी कह रहे हैं, आखिरी नबी
कोई नहीं खड़ा हो, फिर अली खड़े हुए, कहा अली आप बैठ जाइए। तीसरी मर्तबा कहा कौन है जो मेरी इमदाद करेगा, ये नहीं कहा कि सिर्फ अली करेंगे, आप में से कौन है जो मेरी इमदाद करेगा। मैं एक को मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, सबको कह रहा कौन है जो मेरी इमदाद करेगा। फिर अली खड़े हो गए, कोई नहीं खड़ा हुआ। यहाँ अगर एक आदमी खड़ा हो जाए तो मैं समझूंगा कि सिर्फ हमारी एक ही मदद करने वाला है, आप लोग सब नहीं हैं, जो खड़ा होगा वही मदद करेंगे। अब अली खड़े हुए तो कहा कि आप हमारे मददगार हैं, जानशीन रसूल हैं, खलीफा रसूल हैं, अपनी ज़िंदगी में बनाया। तो लोग हैरान हो गए, लोगों ने देखा जब नबी मदद मांग रहे तो आपको खड़ा होना चाहिए। अली के सिवा कोई खड़ा नहीं हुआ। जब अली कहीं जाते थे तो नबी के साथ जाते थे कि नबी पे मुसीबत न पड़े। एक गली से गुज़रते थे नबी तो लोग नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश करते थे। तो जब नबी गुज़रे, लोगों ने देखा, नबी को पत्थर मारा, नबी वापस घर आए, खून में डूबे हुए हैं। बेटी ने खून साफ किया। अगले दिन जनाब अबू तालिब ने अली को भेजा साथ में कि जाओ मोहम्मद के साथ। जब गए और जाने के बाद फिर मारना शुरू कर दिया। 2 दिन हो गए, नबी जब गुज़रते थे तो इटकी मारते थे, पत्थर मारते थे। और दुश्मनी कैसे बढ़ती थी, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आपका बच्चा गायब हो गया, आपका बच्चा गायब हो गया, लोग आके उनके घर पे वही लोग गायब करते थे, वही लोग घर पे आते थे और शिकायत करते थे कि आपको पता है आपका बच्चा कौन ले गया है, आपका बेटा किसने उठाया है। कहा नहीं पता, कहा अली लेकर गए हैं। अली जब इमदाद करने वाले नबी के हैं तो अली ये काम क्यों करेंगे। कहा ये मामला नहीं है, कहा ये दुश्मनी पैदा हो रही है। जाहिर सी बात है, आपके वालिद के सामने हम कुछ बुरा भला बोले, बेटा है खड़ा, बाप नहीं उसका, तो आप भड़केंगे कि मेरे बाप के बारे में बुरा भला बोल रहा है। अगले दिन फिर यही हुआ, फिर लड़के गायब हो गए घर से। कहा तुम्हें पता है, वही लोग गायब करते थे, वही लोग घर जाते थे और पूछते थे आपको मालूम है कि किसने गायब किया हमारे बेटे को। कहा मुझे पता है। कहा अली ने। तो दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि अली का नाम दीवार पे लिखा जाता था, फिर उस पर पत्थर मारे जाते थे। इतनी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। और जबकि अली नहीं कर रहे थे, ये दुश्मन काम कर रहा था। वो आते थे, छीनते थे बच्चों को और फिर वही घर जाते थे, बताते थे कि आपके बेटे को कौन ले गया, तो कहते थे अली। आपके जहन में अगर वही बैठेगा नाम तो अली से दुश्मनी बढ़ेगी या दोस्ती, दुश्मनी बढ़ेगी। वही दुश्मनी बढ़ती गई और ये दुश्मनी करबला तक गई है, ये दुश्मनी करबला तक गई है। अब अज़ीज़ान गिरामी जब रसूल गए तो लोगों ने फिर पत्थर की बारिश की। तो जनाब अबू तालिब ने अली को भेजा। रसूल जख्मी होके चले आए, जवाब नहीं दिया, पलट कर चले। और आने के बाद अली साथ में गए। जैसे ही पत्थर मारा और ये शिकायत जनाब अबू तालिब तक पहुंची है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जाके कहा है कि आप अपने बेटों को समझाइए कि मेरे चचा को आपने ज़ख्मी किया, आपके बेटों ने पत्थर मारा। तो उन लोगों ने सवाल का जवाब दिया, अरे ये तो बच्चों का मामला है, बच्चे में बात रहने दीजिए। कहा ठीक है, खामोश रहे जनाब अबू तालिब। फिर रसूल निकले, इधर से अली साथ चले। एक ने बढ़ के बच्चे ने पत्थर मारा। क्यों, बच्चा अगर कोई मारेगा तो कोई बड़ा नहीं बोलेगा, बच्चों को आगे करते थे, बड़े पीछे रहते थे। अब जब बच्चे ने इटकी मारा तो अली ने एक इटकी उठाया, उसको मारा, उसका हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की आँख फूटी। जब ये सब मामला हुआ, अली और नबी चले आए। अब लोग मुसलमान नबी के पास पहुँचे, जो काफिर लोग थे वो लोग नबी के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद जनाब अबू तालिब के पास आए। कहा या जनाब अबू तालिब, आपके बेटे ने हम सबके बच्चों को मारा है। तो जनाब अबू तालिब ने क्या जवाब दिया, कहा ये तो बच्चों का मामला है, बात बच्चों में रहने दीजिए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप बेटे को आगे करेंगे, आप पीछे रहेंगे तो बच्चे को कोई नहीं मारेगा। तो उन्होंने वो जवाब दिया, रही ये तो बच्चों का मामला, बच्चों में रहने दीजिए। तो जनाब अबू तालिब ने भी जवाब दिया, कहा ये बच्चों का मामला है, बच्चों में ही रहने दीजिए। अब बड़े इसमें क्या कर सकते हैं, उधर भी बच्चों का मामला तो इधर भी। वो नबी को जख्मी करते थे,
अली ने ऐसा वार किया, किसी का हाथ टूटा, किसी की नाक फूटी, किसी की आंखें फूटी, किसी का पैर टूटा। वो शिकायत जनाब अबू तालिब के पास आए, कहा अगर मेरे भतीजे को कोई नहीं मारता तो अली भी आज तुम्हारे बच्चों को नहीं मारता। ये दुश्मनी बढ़ती चली गई। अब लोगों ने एक मशवरा किया कि ऐसा किया जाए कि अली को रुसवा जलील किया जाए। कहा क्या काम करे ऐसा। एक बुढ़िया थी, उसको बेटे को लिया और ले जाने के बाद मैयत पे लिटाया, जो मैयत होती नहीं चारपाई जिस पे बोलते हैं, लिटा के लेकर गए। और ले जाने के बाद मैदान भरा हुआ है, बच्चे को लिटा दिया, जवान बेटा बुढ़िया का, पर्दा लग गया ऐसे। अब लोग उसमें कुछ लोग गए कि आज तो देखेंगे, ये तो जिंदा लेकर आए हैं मजाक उड़ाने के लिए। पहुँचे अली के पास, कहा मेरा बेटा मर चुका है, आपसे चाहते हैं कि आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अली तशरीफ़ लेकर आए। 3 मरतबा पूछा, जब अली तशरीफ़ लिया, भरा हुआ मजमा है, पूरा दरबार सजा हुआ, बहुत ज़्यादा मजमा है, पर्दा लगा हुआ है, बुढ़िया का बेटा जिंदा लेकर आए हैं और ये अली का इम्तिहान ले रहे हैं कि देखते हैं कि अली ये बता सकते हैं ये जो पीछे लेटा हुआ ये जिंदा या मुर्दा, और इनको खबर ही नहीं है। 3 मरतबा पूछा, नमाज पढ़ा दूं, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूं, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूं, पढ़ा दीजिए। जब तक वो जिंदा था, इधर तकबीर अली ने कही, वो मुर्दा हो गया। इधर तकबीर का कहना था, वो मुर्दा हो गया। कहा ठीक है। जब नमाज हो गई, अब लोग हंसना शुरू कर दिया। कहा हम तो जिंदा लेकर आए थे, वो तो जिंदा, वो तो मुर्दे की नमाज पढ़ा दी है, जिंदे की नमाज पढ़ा दी है। कहा ठीक है, हंसो, हंस लो, जो हंसना है, मजाक उड़ाना उड़ा ली। कहा ठीक है। जब पर्दा हटा, कहा जरा जाके हालत तो पूछिए। जब चादर हटाई तो देखा मर चुका। आय हाय, देखा तो मर चुका। अली वो है जिसे यदुल्ला कहा गया, ऐनुल्ला कहा गया। अली अगर ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, और अगर अली नमाज की नियत कर ले तो जिंदा इंसान मुर्दा हो जाता है। सरवात पड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जितने अब जितने लोग आए थे उनका चेहरा उतर गया। वो यदुल्ला है। इसे आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि एक जहाज़ पहुंचा है बादलों में, चांद के पास गया ना। अली ने 1400 बरस पहले बताया था कूफे के मिंबर पर, जो पूछना वो पूछ लो, ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के मैं रास्ते जानता हूँ। अली ने बता दिया। ये जहाज़ तो अब पहुँचा है। तो जैसे जब जाने लगे शर्मिंदा हो गए, जलील ख्वार रुसवा हो गए, क्योंकि अली अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह के बंदे हैं और नबी के जानशीन हैं। अब सब तो भाग गए, सब चले गए। बेटा जिसका था वो बची बुढ़िया। कहा या अली, कदमों में गिरी, या अली आप कलमा पढ़ाइए मुझे और हमारे बेटों को ज़िंदा करिए। बेटा मर चुका था, लाई थी जिंदा, मर चुका था। अली ने ठोकर मारी, बेटा जिंदा हो गया। बुढ़िया ने भी कलमा पढ़ा, जो काफिर के बहकाए में आए थी। बेटे ने भी कलमा पढ़ा, जो काफिर के बहकाए में आया था। अब ज़रा सोचिए, पर्दे के आड़ में आपको नहीं मालूम ये दीवार के पीछे क्या है, पता है? नहीं पता, लेकिन अली को पता था ये जलील करने के लिए आएंगे। जैसे ही 3 मरतबा पूछा कि पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, इधर तकबीर हुई तो जिंदा इंसान मुर्दा हो गया। अली वो है जो अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। तो तय ये जनाब रसूल खुदा नबूवत का ऐलान किया। तो अली की फजीलत 23 बरस तक मुसलसल सुनाते रहे। अली कुल्ली ईमान, अरे शहर शान, अली मर्द मैदान, अली वारिस कुरान, अली बोलता हुआ कुरान। ये 23 बरस तक तबलीग क्यों कर रहे हैं? जब सारी तबलीग कर चुके तो अली की फजीलत बयान कर रहे हैं। अली कुल्ले ईमान है, अली फाते खैबर है। या नबी अल्लाह, ये गदीर में मौला क्यों बनाया था? जब खाने काबा में 13 रजब को आए थे तभी आपको कह देना चाहिए।
خانے کعبہ میں جب آئے تھے تبھی آپ کو کہہ دینا چاہیے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ نبی تو 40 سال کے بعد بنے تھے. اب ذرا انصاف سے بتائیے جب اللہ کا نبی آیا تو کیا نبی نہیں تھا؟ جب جناب آمنہ کی گود میں تھا تو کیا نبی نہیں تھا؟ جب مکے کے گلیوں میں تھا تو کیا نبی نہیں تھا؟ جب خانے کعبہ کی چادر سے لپٹا ہوا تھا تو کیا نبی نہیں تھا؟ کیا نبی تھا. جب دنیا میں آیا تب بھی نبی تھا. جب جناب آمنہ کی گود میں تھا تب بھی نبی تھا. جب خانے کعبہ سے قریب تھا جب بھی نبی تھا. یہاں نبی بننے نہیں آیا، نبی بن کے آیا ہے. صلوات پڑھے بر جب جناب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھوں کو بلند کر کے بولا کریے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب نبی آئے تھے تو نبی تھے، آمنہ کی گود میں تھے جب بھی نبی تھے، خانے کعبہ کی چادر سے لپٹے ہوئے تھے جب بھی نبی تھے، مکے کی زمین پہ تھے جب بھی نبی تھے. تو عزیزان گرامی یہاں نبی بننے نہیں آئے تھے، نبی بن کے آئے تھے. جب جناب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا کنت نبی و آدم بینہما طین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت نبی تھا. جب نبی نے جملہ کہا تھوڑی دیر کے بعد علی آئے، انہوں نے کہا کنت ولیا و آدم بینہما طین، جب آدم پانی کے اور مٹی کے درمیان تھا میں اس وقت ولی تھا، اس وقت علی تھا. یعنی نبی اور علی اس وقت تھے. وما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے نور ہی کو تو خلق کیا ہے، نور ہی کو خلق کیا ہے. تو 23 برس تک مسلسل نبی تبلیغ کرتے رہے، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اپنا جانشین بنا لیا، خلیفہ بنا لیا، اپنا مددگار بنا لیا، نبی بن کر آگے دنیا میں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نہیں تھے. اب عزیزان گرامی یہ بتائیے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ پنجتن پاک چادر میں داخل ہوئے، یہ چادر تطہیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ بتائیے اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا جا رہا کہ نہیں؟ کہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھنا، اہل بیت کو ایسے پاک ہے جیسے پاک رہنے کا حق ہے. پھر نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اب جہاں جہاں علی جائیں گے حق ساتھ ساتھ جائے گا، جہاں حق جائے گا وہاں علی نہیں جائیں گے، جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائیں گے. یہی تو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں علی جائیں گے حق ساتھ ساتھ جائے گا، جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی حق کے محتاج نہیں، حق علی کے محتاج ہے. علی حق کے محتاج نہیں، حق علی کے محتاج ہے. پھر نبی نے حدیث فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں، اسی لیے تو نبی دو چیز چھوڑ کر گئے ہیں مسلمانوں کے درمیان، دنیا کے درمیان دو ہی تو چیز چھوڑ کر گئے ہیں، کہ ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے. نبی نے حدیث فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا، وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا. اگر ان سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ایک کا دامن پکڑا تب بھی گمراہ، اور ایک کا دامن چھوڑا تب بھی گمراہ. جب تک اہل بیت اور کتاب اہل بیت کا دامن نہیں پکڑیں گے تب تک گمراہی سے بچیں گے نہیں. یوں کہوں ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، تب تک یہ تمہاری گمراہی کو بچا ہی نہیں سکتا جب تک دونوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہ ہو. کا ایک دامن قرآن کا اور ایک دامن اہل بیت کا. صلوات پڑھے الحق و علی و علی المال حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے. القرآن و علی و علی المال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. نبی فرماتے رہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے. اب ذرا بتائیے جو شہر علم ہے وہ ہے نبی، اور جو اس کا دروازہ ہے وہ علی. آپ گھروں میں داخل ہوتے دروازے سے، دیواروں سے نہیں آتے ہیں. علم لینا ہے تو دیواروں سے نہیں آنا پڑے گا، دروازے سے آئیے. دیواروں سے آنے کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہیں؟ دیواروں کا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چوروں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا نہیں.
चोर होते हैं जो दीवारों से भान के आते हैं, तड़क कर आते हैं। जो इंसान को इल्म हासिल करना वो दरवाजे से आएगा, आप दरवाजे के रास्ते से आए और दरवाजे के रास्ते से चले जाएंगे। ये पंजतने पाक जब चादर में जमा हुए तो नबी ने कहा यऊज़ुका बिल्लाहि मिनज़्ज़ब। किससे कहा? अपनी बेटी से कहा। अगर यहाँ कोई बच्चा बैठा हो, छोटा बच्चा बैठा है, अगर उस पर परेशानी आएगी तो किससे कहेगा? अपनी माँ से। ठीक, नबी रसूल की बेटी हैं। एक हदीस सुना देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमा उम्मे अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ। तो रसूल है अपने बाप, रसूल कौन हुए? फ़ातिमा के बेटे। जब माँ हुई तो बेटे हुए, तो बेटा किसके पास जाएगा? कहा मुझे बदन में ज़ोर महसूस हो रहा है, मुझे चादर यमनी ला कर दे दो। किससे कह रहे हैं नबी? अपनी बेटी से कह रहे हैं। कहा चादर यमनी क्या करोगे? उइज़ुका बिल्लाहि यबको मिनज़्ज़ब, मैंने आपको खुदा की पनाह में दे दिया है, अब चादर मांगने की ज़रूरत क्या है? कहा नबी यही तो बतलाना चाहते हैं। जब एक इंसान ये कह रहा है, अगर एक बेटी ये कह रही कायनात की कि आपको हमने खुदा की पनाह में दे दिया, अब चादर मांगने का सवाल ही नहीं है। नबी कह रहे हैं चादर यमनी ला के दे दो। बेटी कह रही मैंने बाबा आपको खुदा की पनाह में दे दिया। नबी बताएंगे, नबी फरमाएंगे का बेटी मैं चादर थोड़ी मांग रहा हूँ, का फिर का पनाहे खुदा का पता बता रहा हूँ, पनाहे खुदा का पता बता रहा हूँ। का दो चादर ऐसी हैं, जुमला आपके हवाले करता हूँ। का एक चादर वो जो सरे रसूल पे आए, वो रसूल के शिफा। ये दो चादर ऐसी है का जो एक चादर वो बीबी की चादर, जो बतूल की चादर सरे रसूल पे आई, वो रसूल के लिए शिफा। एक वो चादर जिसपे बीबी के कदम आए, वो फर्श अदा हमारे लिए शिफा, वो फर्श अदा हमारे लिए शिफा। जब रसूल चादर में दाखिल हुए, इमाम हसन बढ़े, का अस्सलाम अलैका या जद्दो, ए मेरे जद आप पर हमारा सलाम। चादर में दाखिल हुए। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या जद्दो, ए मेरे जद, ए मेरे नाना आप पर हमारा सलाम। वो भी दाखिल हो गए। बेटी भी सलाम किया और दाखिल हो गई। पंजतन चादर में दाखिल हो गए। फरिश्ता आसमान से उतरा, परवरदिगार से सवाल किया, या रब व मन तहतल किसा, परवरदिगार इस चादर के नीचे है कौन? वही पूछ रहा है जो आयत ये लेकर आया है, वही फरिश्ता पूछ रहा है जो ये आयत लेकर आया है, जो आयत लेकर आया। आप मेरे साथ दीजिएगा, वही फरिश्ता पूछ रहा है जिसने ये आयत उतारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति युत्ताहिरकुम तत्हीरा। चादर तदहीर में जब पंजतन जमा हो गए, वही फरिश्ता है जो आयत को लाने वाला है। वही परवरदिगार से सवाल कर रहा, या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे है कौन? का तुम्हें पता नहीं? का मालूम तो है, लेकिन आप बता दे तो और बेहतर होगा। तो अल्लाह की आवाज़ आए, हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शोहर है, फातिमा के बेटे हैं। परवरदिगार मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये तारुफ नबी के ज़रिए से होना चाहिए, बाप के ज़रिए से तारुफ सबका होना चाहिए। बेटी का अगर तारुफ होगा तो बाप के ज़रिए से, बेटों का तारुफ होगा तो बाप के ज़रिए से। परवरदिगार ये मामला क्या है समझ में नहीं आता है, ये बेटी के जरिए से सबका तारुफ क्यों हो रहा है? का तुम्हें मालूम नहीं है? अल्लाह की आवाज़ आए, हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसीलिए नबी ने फरमा दिया का नबी के जरिए से अब नहीं होगा, का फातिमा के जरिए से होगा। फातिमा अपने नबी की माँ है, फातिमा अपने नबी की माँ, फातिमा उम्मे अबीहा अपने बाप की माँ है। जब ये हदीस भी फरमा दी, का परवरदिगार ये फातिमा के जरिए से तारुफ क्यों करवा रहा है? का तुम्हें मालूम नहीं है इस चादर में जब भी कोई आएगा तो रसूल के रिश्तेदार नहीं आएंगे, फातिमा के रिश्तेदार आएंगे। सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर रसूल के रिश्तेदार आते तो उस तरह से तारुफ होता कि रसूल हैं, रसूल की बेटी हैं, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे। अल्लाह ने तारुफ का तरीका ही बदल दिया। हुम फातिमा, फातिमा है, व अबूहा व बालुहा व बनूहा। हुम फातिमा, फातिमा फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। और अल्लाह को तारुफ क्या करना चाहिए था? अब तारुफ का तरीका ही बदल दिया। कहा रिश्तेदार फातिमा के आएंगे, रसूल के नहीं, रसूल के नहीं होंगे। ये जो हम लोग तबर्रुक जो मिलता है हम लोग को, ये तबर्रुक हुसैन है। आपको पता है तबर्रुक कहाँ से आता है? कहा जन्नत से।
आप कहेंगे कैसे मौलाना? कहा जब फर्श अदा बिछता है तो पंजतन जन्नत के यहाँ आ जाते हैं, और जहाँ पंजतन होते वहीं जन्नत होती है। आप पूछेंगे कैसे मौलाना, ये तबर्रुक कैसे है? कहा देखिए, वहाँ भी तबर्रुक है, यहाँ भी तबर्रुक है। आसमान के फरिश्ते तबर्रुक लेकर फातिमा का यहाँ आते हैं। जो हम इंसान तबर्रुक लेते हैं ना, ये तबर्रुक कोई और चीज़ नहीं है। जब ये बिस्कुट होता है, जब ये नमकीन बढ़ती है तो इसे बिस्कुट कहा जाता है, इसे नमकीन कहा जाता है। जब ये तबर्रुक अहले बैत से मंसूब हो जाता है, अब इसे बिस्कुट न समझना, ये तबर्रुक है। ये तबर्रुक कहा गया का फातिमा से मस हो गया, अब ये तबर्रुक हुसैन कहलाया गया। अब ये तबर्रुक आया का, ये जन्नत से तबर्रुक आया। आसमान के फरिश्ते जब भी आते थे तो रसूल के दर पे नहीं आए, बतूल के दर पे आए हैं। आसमान के फरिश्ते जब भी आए हैं तो रसूल के दर पे आए हैं, नहीं फातिमा के दर पे आए हैं। इंशाअल्लाह कल इसी पे गुफ्तगू होगी हमारी। आप मेरा साथ दीजिए, आप भी रसूल के नाम पर मजलिस करवाइए। अगर चाहते हैं दुनिया और आखिरत आबाद रहे तो रसूल के नाम पर गिरिया करिए, रसूल का मातम करिए। सिर्फ रसूल वही रसूल है जिसको गोद में लेके बोसा ला रहा गले का ये गले का बोसा क्यों लिया जा रहा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तुम्हें मालूम नहीं है? इसी सूखे गले पे खंजर चलेगा शिगर का। 3 दिन की भूख और प्यास, अभी बकरीद गुजरी है, आपको मालूम है ना जानवर किस तरह से ज़िबा होते हैं। का उन्हें पानी पिलाया जाता है, पहले उन्हें दाना खिलाया जाता है, फिर उनको पानी पिलाया जाता है, फिर उन्हें ज़िबा किया जाता है। हाय हुसैन की गुर्बत, हाय हुसैन की मज़लूमियत। इमाम हुसैन को पता है किस तरह से ज़िबा किया गया? 3 दिन की भूख है और प्यास है, फिर उसके बाद 71 लाशें तनहा हुसैन ने उठाए हैं। जब मक्तल में लाशें जाते थे, इमाम हुसैन का काम ये था कि मक्तल से लाश खैमों की तरफ पहुँचाना है। जनाब ज़ैनब का ये काम था कि उन शहीदों पर मातम करना है। अदादारों, कोई माँ इसे तारीख़ में मिलेगी? अगर किसी का बेटा मर जाए तो क्या वो गिरिया नहीं करेगी कि मेरा बेटा मर गया? अली की बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब 2 बेटे शहीद होकर आए तो ज़ैनब ने रोया नहीं, बल्कि आए और आने के बाद अपने को सजदे में गिराया, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले, यही दुआ की है। और कहा है मैं करबला इसलिए नहीं आई हूँ कि अपने बेटों का मातम करूँगी, इसलिए आई हूँ कि अपने भैया हुसैन का मातम करूँगी। हाँ ज़ादारो, तारीख़ बताती है कि 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है। आपको पता है जब सारे अंसार शहीद हो गए, जवानाने बनी हाशिम शहीद हुए, एक नन्हा मुजाहिद बच्चा 6 महीने का अली असगर, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितना बड़ा बच्चा होता है। आप अपने सरों को झुका लिया करिए, रोया करिए खुदा के लिए, रसूल के ऊपर, रसूल की आल के ऊपर, इमाम हुसैन पे गिरिया करिए। ज़रा से बच्चे को सोचिए कि 6 महीने के बच्चा कितना बड़ा होता है, अभी वो घुटनी भी नहीं चल पाता, घुटनों नहीं चलता है। अदादारो, तारीख़ बताती कि इमाम हुसैन खैमों में आए और आने के बाद जनाब रबाब से कहा लाइए बच्चे को दे दीजिए, मैं पानी पिला रहा हूँ। अदादारो, तारीख़ बताती है कि हुसैन ने अबा के दामन ऐसे डाला जैसे मैयत लेकर हुसैन चल रहे हैं। अदादारो, तारीख़ बताती है कि मैदान करबला में जब हुसैन पहुँचे हैं तो यजीदियों में हलचल मची हुई थी कि हुसैन बैत करने के लिए कुरान लेकर आ रहे हैं। अदादारो, जैसे ही पर्दा हटा कि देखा कि 6 महीने का बच्चा हुसैन की हाथों में है। अदादारो, एक मरतबा इमाम हुसैन ने एक आवाज़ बुलंद की, ऐ ज़ालिमों, इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो, इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो, इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है। तारीख़ बताती है कि कोई पानी का सवाल ना हुआ, कोई जवाब नहीं आया पानी का। इधर से सवाल गया लेकिन जवाब नहीं आया। अदादारो, तारीख़ बताती है कि उधर से आवाज़ आई, हुसैन चाहते हैं कि इसके बच्चे के बहाने खुद पानी पी लेंगे। एक मरतबा इतना सुनना था, इमाम हुसैन जलती हुई रेत पर ज़मीन पे लिटा दिया और कुछ कदम पीछे हट गए। कहा अब तो पिला दो इस बच्चे को खुद अपने हाथों से आकर। अब कोई पानी नहीं आया। अदादारो, तारीख़ बताती है कि उधर मशहूर बहादुर जो सबसे तीर अंदाज बेहतरीन निशाने वाला, उसको हुक्म दिया, ऐना ऐना हुरमुला, ए हुरमुला तू कहाँ है? यक्तल कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। अदादारो, तारीख़ बताती है कि जब हुरमुला ने
तीर जोड़ा है ना, वो तीर किसको मारा जाता था आपको पता है? 6 महीने बच्चे को नहीं, जानवरों को शिकार किया जाता था, ऊँट को नहर किया जाता था। वो तीर कैसा था? का 3 भाल का तीर होता था, चिल्ले कमान में जोड़ा, तीर चलाया, गिर गया, फिर जोड़ा तीर, फिर गिर गया, फिर जोड़ा तीर, फिर गिर गया। उमर साद आकर पूछता है, ए हुरमला तू तीर क्यों नहीं चलाता? हुरमला कहता है, तुम्हें मालूम है जब मैं तीर चलाना चाहता हूँ 6 महीने बच्चे के लिए, एक नकाबपोश बीबी आती है और फरियाद करने लगती है। क्या हुरमला तुझे मालूम नहीं है क्या कि तेरे कोई औलाद नहीं है? क्या तेरे कोई औलाद नहीं है? क्यों तीर चलाना चाहते इस बच्चे के लिए? अदादारो तारीख बताती है। फिर इसने तीर को जोड़ा। का एक शख्स आते हैं जो अपने बाल बिखराए हुए और फरियाद करते हैं, अरे इस बच्चे की क्या खता है, अभी बोल भी नहीं पाता है, अभी सही से दूध नहीं पीता है, अभी चल भी नहीं पाता है। का कोई और नहीं है? का वो रसूल खुदा आए हैं, वो अली मुर्तदा आए हैं? का इस बच्चे की कोई खता नहीं? तारीख बताती है कि हुरमुला का तीर चला, असगर के गले पर लगा। तारीख बताती है जुबहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, इस कान से इस कान तक पार हो गया जब अली असगर के गले पे तीर लगा है ना। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने हाथों में लिए हुए हैं, बाजू भी छिद गया है। एक मर्तबा बच्चा बाप के हाथों पे तड़पा, एक आवाज बुलंद की, का बाबा अम्मा से शिकायत न कीजिएगा, अरे तीर इतना बड़ा था, अरे मेरी गर्दन इतनी छोटी थी। अदादारो तारीख बताती है, अब अदादारो जब इमाम हुसैन ने अली घर का खून लिया, अब चाहते हैं कि आसमान की तरफ फेंके, आसमान से आवाज आए, हुसैन अगर एक कतरा आया ता कयामत तक बारिश ना होगी। अब चाहते हुसैन जमीन की तरफ फेंके, जमीन से आवाज आई कि अगर जमीन पे एक कतरा भी आ गया ता कयामत तक बारिश ना होगी। अज़ादारो हुसैन ने जनाबी अली असगर का खून अपनी दाढ़ी में मला और मलने के बाद खैमे की तरफ रवाना हुए। अज़ादारो अबा का दामन डाला, पहुँचे खैमों के पास। रबाब से पहले जनाब सकीना आ गई। एक मरतबा जुमला अर्ज़ किया, ए बाबा आपने असगर को पानी पिलाया, मैं प्यासी ही रह गई। अज़ादारो एक मरतबा दामन हटाया, जनाब सकीना ने तड़प कर देखा तो बर्दाश्त न कर सकी कि मेरे भैया मारा गया। जनाब रबाब दौड़ती हुई आए, एक मरतबा कहा, देखो भी अम्मा, अम्मा देखो क्या हालत हो रही है। कभी हुसैन आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते, यही जुमला कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिक़ज़ा व तस्लीमन लिअम्रे। तारीख बताती है कि जनाब अली असगर को नन्ही सी लहद बनाई और नन्ही सी लहद बना के असगर को दफन कर दिया। एक मरतबा माँ रबाब बाहर आई, या बुनैया मिसलो का युनहर, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अज़ादारो हुसैन ने जमीन में असगर को दफन किया कि इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिक़ज़ा व तस्लीमन लिअम्रे, मातम हुसैन।